Hello students, welcome to my last minute revision videos. Today I am going to start with the adjustments which are frequently asked in final accounts. Now, adjustments I have written over here, trading account, P&L account and balance sheet. Okay, so I am going to mark जहाँ जहाँ पे adjustments आएंगे मैं वहाँ पे mark करके आपको बता दूंगी. The thing is that in adjustment, each and every adjustment has two effects that you know very well, debit effect and credit effect. So after each and every adjustment I am going to explain कि कहाँ पे डेबिट कहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा. क्लियर? स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, ये हमेशा फर्स्ट एडजस्टमेंट रहती है फाइनल अकाउंट्स के सम के बाद. Now closing stock, if there is only one value is given to you, then the effect will be on trading account credit side, first effect. Second effect, balance sheet asset side, P&L account no effect. So that means closing stock you have to transfer trading account credit side, तो ये credit effect हो गया आपका, and then it will come under balance sheet asset side. Asset means debit side, तो ये debit effect हो गया. Clear? But thing is that if the two values are given to you, then as I said earlier in my first video, if the two values are given, then you have to consider the lowest value. जैसे कि if the closing stock amount is 30,000 market price and cost price is 25,000, then you have to consider 25,000 for giving the effect. Clear? Second, outstanding expenses. Now usually outstanding expenses for any like salaries, outstanding wages may be there. In that case, what you need to do is, outstanding अगर word आता है, then you have to add that amount to that respective item. For example, if you have given outstanding wages are rupees 500 and original wages amount is rupees 2000. Now you know very well wages comes under trading account debit side. तो उसी के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड करना है. क्लियर? सो फर्स्ट या तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड या तो P&L अकाउंट डेबिट साइड डिपेंडिंग अपॉन द आइटम. अगर यही आइटम सैलरी करके आया आउटस्टैंडिंग सैलरी, देन यू विल राइट ऑन P&L अकाउंट डेबिट साइड बिलो सैलरी यू विल ऐड ओवर हियर. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन आइटम आपको या तो ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखना है या तो P&L के डेबिट में लिखना है. क्लियर? तो ये इफेक्ट हुआ डेबिट का. सेकंड क्रेडिट इफेक्ट बाकी है. तो आउटस्टैंडिंग दैट मीन्स यू आर लायबल टू पे, सो दैट विल कम अंडर बैलेंस शीट liability side and liability means credit side, right? So ये आएगा balance sheet liability side में. तो ये debit effect either this will come or this will come, not both. तो debit effect and credit effect. Clear? Next, prepaid expenses. Prepaid मतलब you have already paid, you have paid in advance. In that case what you need to do is, जैसे outstanding को हम लोग add करते हैं to that particular item, प्रीपेड को हम लोग लेस करेंगे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आइटम. फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस आपको पता है P&L अकाउंट डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं, राइट? बट अगर इंश्योरेंस अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट इज 2000, फ्रॉम दैट इफ यू ऑलरेडी पेड 500, देन व्हाट यू नीड टू डू इज from P&L account debit side you are going to deduct that 500 from the original amount of insurance. So the net amount will be 2000 original amount of insurance minus 500. आउटर कॉलम में आपके आएंगे 1500. सो P&L अकाउंट डेबिट साइड से आपको लेस करना है. नाउ अगेन सेम, अगर P&L का आइटम रहेगा तो P&L डेबिट से आप लेस करोगे, अगर ट्रेडिंग का आइटम रहेगा तो ट्रेडिंग से आप लेस करोगे. करना लेस ही है बट डिपेंडिंग अपॉन द आइटम. अगर वहां पे वेजेस प्रीपेड वेजेस आएंगे देन इट विल कम अंडर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. अगेन यू विल डिडक्ट फ्रॉम दैट. ये हुआ डेबिट इफेक्ट. आइदर दिस विल कम और दिस विल कम. सेकंड इफेक्ट, एज दिस इज प्रीपेड, राइट? तो दैट मीन्स ये हुआ आपका एसेट. अब कोई भी एक्सपेंसेस अगर जल्दी पे कर देते हो तो नाउ यू आर रिलीव्ड, दैट मीन्स ये आपकी एसेट हो गई. तो आपको सेकंड इफेक्ट देना है एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में. क्लियर? तो नाउ देखिए, डेबिट से लेस करते हो तो क्रेडिट इफेक्ट कहलाता है एंड बैलेंस शीट एसेट साइड मतलब डेबिट इफेक्ट आता है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गिव द इफेक्ट. तो ये डेबिट कहलाएगा इफेक्ट
और ये क्रेडिट कहलाएगा. इवन इफ इट इज ऑन डेबिट साइड, हम लोग लेस कर रहे हैं इसलिए वो क्रेडिट होगा. क्लियर? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन. नाउ इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, यूजुअली एसेट्स, फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी, लैंड, अगर उस पर अगर आपको डेप्रिसिएशन वो चार्ज करते हैं से 10%, 20%, द वेरी फर्स्ट इफेक्ट इज दैट बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है. देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ योर एसेट, राइट? सो द फर्स्ट इफेक्ट वॉट एवर यू विल गिव इज बैलेंस शीट लेस फ्रॉम एसेट साइड. बाय, बिकॉज सारे एसेट्स आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? बैलेंस शीट एसेट साइड में. तो अगर मशीनरी का रहेगा, सपोज 20,000 इज द कॉस्ट ऑफ योर मशीनरी, 10% is the rate of depreciation, then on 20,000 10% will be 2,000. 20,000 minus 2,000 will give 18,000 in outer column. So less from asset, this will be the first effect. तो ये effect कौन सा हुआ अभी? Credit, because asset means debit side, but वहाँ से आप less कर रहे हो तो एक credit effect हुआ. अभी बचा कौन सा? Debit. So that will come under P&L account debit side. Now students, यहाँ पे आएगा ही नहीं, चाहे वो मशीनरी हो, लैंड हो, फर्नीचर हो. ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पे हम लोग कभी भी डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं करते. क्लियर? तो ये दो ही इफेक्ट आएंगे, ये डेबिट इफेक्ट, ये क्रेडिट इफेक्ट. नाउ नेक्स्ट, बैड डेट्स एंड आरडीडी. नाउ बैड डेट्स एंड आरडीडी, एज आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट वीडियो, कि हम लोग पीएनएल अकाउंट में हमेशा एक चार्ट लिखेंगे. द चार्ट विल बी लाइक दिस: बैड डेट्स, राइट? ये हमेशा होगा ट्रायल बैलेंस वाला प्लस फर्दर बैड डेट्स. नाउ एज द वर्ड सेज फर्दर, तो ये होगा आपका एडजस्टमेंट वाला प्लस न्यू आरडीडी. तो एज द वर्ड सेज न्यू, सो दैट मीन्स अगेन इट विल बी फ्रॉम एडजस्टमेंट एंड लेस ओल्ड आरडीडी. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओल्ड, मतलब ये ट्रायल बैलेंस का रहेगा. Now, regarding effect, इन दोनों के लिए एक ही इफेक्ट, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम आते हैं उनके लिए हमेशा एक ही इफेक्ट होता है, आपको जस्ट पोस्ट करना होता है. क्लियर? तो इसके लिए और इसके लिए तो हो गया. वेयर विल वी राइट दैट? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. ओके, तो ये सारा चार्ट आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, राइट? तो यहाँ पे लिखोगे. क्लियर? तो ये आपका ये इफेक्ट हुआ, ये इफेक्ट हुआ. नाउ बचे कौन से दो? फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. बोथ आर फ्रॉम एडजस्टमेंट, तो इनके लिए दो इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट मैंने जैसे पहले ही बता दिया, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में आप लिखोगे, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, राइट? एंड सेकंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स कहाँ पे होते हैं? बैलेंस शीट एसेट साइड. तो अगर वहां से लेस करो, दैट मीन्स दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, और ये दोनों हो गए आपके डेबिट इफेक्ट, बिकॉज डेबिट में ही आप ऐड कर रहे हो. क्लियर? तो ये हुआ आपके, ये हुआ क्रेडिट इफेक्ट, ये हुआ आपका डेबिट इफेक्ट. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. ओके, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट, आई जस्ट शो यू, if there are two adjustments like new reserve for doubtful debt, 5% is to be maintained, and rupees 500 is the amount of bad debt in adjustment, then that is further bad debt, right? So here you need to maintain the hierarchy. For example, if debtors amount on balance sheet asset side is rupees 50,000, RDD is to be maintained 5%. This is your first adjustment, and let's say third and fourth adjustment is about bad debts, that is rupees 1,000. So in this case, how will you do that? If this is your third or fourth adjustment, even if it is your third or fourth adjustment, first you have to give the priority for bad debts. So this hierarchy you have to maintain. Like from debtors, I am talking about balance sheet asset side. There you have written already debtors in inner column 50,000, right? From that you will first deduct bad debts. Even if the first assessment is about RDD, आपको पहले प्रायोरिटी किसे देनी है? बैड डेट्स को ही देनी है. सो फर्स्ट यू विल डिडक्ट बैड डेट्स, राइट? द अमाउंट इज 1,000, दैट गिव्स यू 49,000, एंड नाउ ऑन दिस 49,000 you are going to calculate RDD 5%.
So less RDD 5% on 49,000 will give you 2450. So whatever amount will come, that you are going to enter in outer column. So please students, do not change this hierarchy. Why? Because अगर फर्स्ट एडिशन में आरडीडी है तो इमीडिएटली आप पहले आरडीडी दे दो, बाद में बैड डेट्स लेस कर दो. ये आपका आंसर रॉन्ग आएगा. नाउ व्हाई आई विल टेल यू. बिकॉज बैड डेट्स दे आर कंफर्म बैड, तो पहले आपको उनको लेस कर दो. जो रिमेनिंग है उसमें आपको डाउट लग रहा है, एंड दैट इज वाई द हायरार्की इज लाइक दिस. जो कंफर्म बैड डेट्स है उनको पहले लेस कर दो, बाद में जो डाउट लग रहे हैं तो उनको आप लेस करोगे. इज दैट क्लियर? एंड दैट इज वाई द हायरार्की शुड बी मेंटेन. दिस फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग अबाउट दिस चार्ट, मैंने आपको बता तो दिया कि P&L अकाउंट डेबिट में ये चार्ट लिखना है, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. बट समटाइम्स इट मे हैपन दैट ये तीनों की एडिशन आ जाती है 10,000, राइट? बट ओल्ड आरडीडी में अमाउंट इज 15,000. देन इन दैट केस आपके P&L अकाउंट डेबिट में आएगा नेगेटिव 5,000. देन स्टूडेंट्स व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको आउटर कॉलम में जस्ट आपको डैश मारना है P&L अकाउंट के क्रेडिट में, इफ दिस इज द केस. एंड ये जो 5,000 नेगेटिव है, यू हैव टू जस्ट ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट क्रेडिट साइड बाय राइटिंग एक्सेस रिजर्व. दैट्स इट. प्लीज डू नॉट राइट ओवर योर नेगेटिव 5,000. आप डेबिट साइड में नेगेटिव 5,000 यहाँ पे लिख नहीं सकते. सो आई रिपीट वंस अगेन, क्या करना है, अगर ये तीनों की एडिशन 10,000 आती है, ओल्ड आरडीडी 15,000 है, then 10 minus 15 will give you negative 5,000. Then in that case do not write over here, just आपको डैश करना है, नील भी नहीं लिखना है. Transfer this 5,000 from debit side to credit side of P&L account and then write by writing by excess reserve. That's it. The rest of the effect, second effect will remain same.